Welcome once again, everybody present here. And now it is being felt the need of hour that once again we have should have the recapitulation of the main contents and ideas of each chapter in SST. And now it is uh, necessary in order to have a good marks in the upcoming CBSE examination. And here the chapter I am going to discuss with you is the nationalism in India. But prior to start this chapter, let me clarify you once again the meaning of nationalism and how is it different from the nationalism in Europe. It is very necessary because there are two chapters with the same terminology: nationalism in Europe, Europe में राष्ट्रवाद, and nationalism in India, भारत में राष्ट्रवाद. But they have very broad differences among themselves. Although these two nationalism is having one common thing, that the people were showing love and affection and devotion towards their own nation. But this love, affection, and devotion towards nation did not resulted and did not emerge out in the same circumstances and were having the same result. How is it going to be having differences among themselves? Let me clarify you. As far as the nationalism word is concerned, first of all, let me get clear cut meaning of this term. नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद का क्या मतलब होता है? तो नेशनलिज्म आने से पहले आपके लिए एक नेशन होना होगा. जब नेशन होगा, राष्ट्र होगा, तभी तो उसके प्रति प्रेम होगा. तो नेशनलिज्म का क्या कहता है मीनिंग? नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ लव, डिवोशन, पैट्रियोटिज्म टुवर्ड्स हिज नेशन. किसी के द्वारा या किसी व्यक्ति के समूह के द्वारा अपने राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, लगाव है, लगन है, डिवोशन है, देशभक्ति है, उसी को नेशनलिज्म कहते हैं. तो नेशनलिज्म होने के लिए तो पहले नेशन होना होगा. तो फिर नेशन क्या है? तो नेशन refers to the group of people living in a particular area having common identities, and these common identities does not the matter of a long time, but this commonness are created by the force of movements. किसी खास क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समूह जिसमें कुछ कॉमन आइडेंटिटी होती है, वही लोग मिलकर आपस में एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं. तो ये कॉमन आइडेंटिटी क्या हो सकती है? उनका इतिहास कॉमन हो सकता है, उनके पूर्वज कॉमन हो सकते हैं, उनकी भाषा कॉमन हो सकती है, उनके रिलीजन कॉमन हो सकते हैं, उनके नस्ल कॉमन हो सकते हैं. सो द पीपुल, ग्रुप ऑफ पीपुल हैविंग कॉमन identical aspects, like in terms of their common language, common past, common ancestor, common ethnicity, then they will form a nation. But this formation of nation does not come out automatically, but this common identity is fostered among themselves. Then they start to realize the fact that okay, we are having common language, we are having common ancestor, we have common past. As you see in the French Revolution, that what sort of measures were taken by the revolutionaries to create a common identity among French revolutionaries. So the nationalism in Europe emerged out in the place of multinational, multi-dynastic rule. You know that till mid 18th century, there used to be empires in European continent, like Habsburg Empire ruling in Austria and Hungary. So in big empire, you may think that there used to live different groups of people having different language, different ancestor, different faith, and different ethnicity. But all the different groups of people were living in one empire, and they were attached to their kingdom due to one rule of the absolute rule of the monarchy. वो एक बहुत बड़े क्षेत्र में अलग अलग नस्ल, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग कॉमन इतिहास वाले लोग रहते थे और सभी का एक राजा होता था. बट दीज पीपल स्टार्टेड टू आइडेंटिफाई देयर कॉमननेस, and they
started to feel that they have common aspects in terms of common past, common religion, common language, common ethnicity, and these commonness started to bind them together, and they thought that why should not they should have a particular area where the people of common identity will live and have their own government, and that will be called a nation state. सो जब यूरोप में बहुराष्ट्रीय बहुवंशीय साम्राज्य के स्थान पर कॉमन आइडेंटिटी वाले लोगों ने एक राष्ट्र का, एक अलग राष्ट्र का निर्माण किया, तब उसका नाम पड़ा नेशन स्टेट। तो वहाँ पर नेशन स्टेट मतलब एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा देश, एक ऐसा राज्य जहाँ पर केवल कॉमन आइडेंटिटी वाले लोग ही रहेंगे, उसमें अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अब इंडिया का मैं एग्जांपल नहीं देना चाह रहा हूँ, वो लोग नहीं। तो बहुवंशीय बहुराज्यीय साम्राज्य के स्थान पर सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का निर्माण हुआ। तो बहुवंशीय बहुराष्ट्रीय साम्राज्य के स्थान पर सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लाइक जर्मनी का निर्माण हुआ, इटली का निर्माण हुआ, ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ, पोलैंड का निर्माण हुआ। तो ये सब कैसे संभव हुआ? ये सब संभव हुआ केवल एक फोर्स से, एक ताकत से, जिसका नाम था नेशनलिज्म। लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना आई। तो लोगों ने पहले अपने आप को, एक राष्ट्र का निर्माण कब होता है? जब कॉमन आइडेंटिटी वाले लोग पार्टिकुलर क्षेत्र में रहते हैं। तो वहाँ तो बहुराष्ट्रीय बहुवंशीय साम्राज्य हुआ करते थे, वहाँ तो नेशन स्टेट जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, पोलैंड जैसे देश थे ही नहीं। तो जब साम्राज्य के अंदर रहने वाले अलग अलग राष्ट्रीयता के लोगों ने जब अपनी कॉमन आइडेंटिटी पहचानी और जब अपने कॉमननेस आइडेंटिटी के आधार पर उन्होंने एक राष्ट्र राज्य बनाने की सोची, तो उसके पीछे जो ताकत काम कर रही थी वो रही नेशनलिज्म। तो यूरोप में जो नेशनलिज्म था वो मल्टी डायनेस्टी, मल्टी नेशनल एम्पायर के जगह पर सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब एक नेशन स्टेट की निर्माण की बात करता था। तो वहाँ पर जो यूरोप में नेशनलिज्म था वो नेशन स्टेट के निर्माण की बात करता था, कॉमन आइडेंटिटी के लोगों के द्वारा, ग्रुप के लोगों के द्वारा। और भारत में जो नेशनलिज्म है वो क्या है? भारत में जो नेशनलिज्म है वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग छोटे बड़े राज्य हुआ करते थे, और फिर अलग अलग सोशल ग्रुप्स रहते थे, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, जनजातीय वर्ग, जंगल में रहने वाले अलग अलग तरह के ग्रुप्स के लोग समूह थे। लेकिन सभी का एक कॉमन शत्रु था ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन ने यहाँ पर अपना साम्राज्य फैला लिया था। तो जब ब्रिटेन के विरुद्ध इन लोगों ने उसके उत्पीड़न से तंग आकर, उसके गलत शासन व्यवस्था से तंग आकर भारतीय लोगों ने जब अपना आंदोलन शुरू किया, तो इस आंदोलन के लिए उन्होंने अब एक राष्ट्र के निर्माण की बात सोची कि हमारा एक स्वतंत्र राष्ट्र होना चाहिए। तो यहाँ जो राष्ट्र और के प्रति जो प्रेम और लगन की भावना थी, वो नेशनलिज्म थी। वो यूरोप के नेशनलिज्म से अलग है, क्योंकि यूरोप के नेशनलिज्म जो था वो साम्राज्य के अंतर्गत, बहुवंशीय साम्राज्य के अंतर्गत उत्पन्न हुआ था, और वो एक नेशन स्टेट बनाना चाहता था। और भारत में जो था वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के अगेंस्ट में शुरू हुआ, और धीरे 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 इन लोगों के, जबकि उनके उद्देश्य अलग थे, सबका एम एक नहीं होता था, सबको अंग्रेजों से छुटकारा चाहिए थी, स्वराज का सबके लिए अलग अलग मीनिंग अलग था। लेकिन फिर धीरे धीरे भारत में ये राष्ट्रवाद को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक फ्लैग के नीचे अंदर लाया गया, और सभी भारतीय एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई लड़ने लगे, और तब उसका रिजल्ट अंत में हुआ कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन nationalism in Europe and nationalism in India. As far as the nationalism in Europe is concerned, it talks about the formation of nation state at the place of multinational, multi-dynastic rule. And as far as nationalism in India concerned, it talks about the freedom of India from the British rule, and it emerged out, the love and devotion emerged out among Indian people due to fighting against their common enemy, Britishers, and they were brought together under one flag, under the leadership of Mahatma Gandhi. And Mahatma Gandhi organized three big movements like non-cooperation movement, civil disobedience movement, and quit India movement, that lastly culminated being India free. तो हम यहाँ देखते हैं कि नेशनलिज्म वर्ड, नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर में भी जुड़ा हुआ है, और नेशनलिज्म इन इंडिया वाले भी चैप्टर में जुड़ा हुआ है। लेकिन वहाँ का जो नेशनलिज्म इन यूरोप है वो बहुवंशीय बहुराष्ट्रीय साम्राज्य के स्थान पर एक नेशन स्टेट, मतलब जर्मनी जैसा देश, एक पोलैंड जैसा देश, एक ग्रेट ब्रिटेन जैसा देश
बड़े बड़े साम्राज्य के स्थान पर निर्माण की बात करता है, और वहाँ राजा के विरुद्ध लड़ाई थी। और यहाँ पर जो भारत में है, हम लोग अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे, और इसी लड़ाई के क्रम में हमारे देश में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जगी, और फिर महात्मा गांधी और उनके कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सभी अलग अलग वर्गों और समूहों के लोगों को एक साथ जोड़ा गया, क्योंकि यहाँ सबकी कॉमन आइडेंटिटी यही थी कि सभी लोग एक बड़े उपमहाद्वीप में बहुत सालों से रहते थे, लेकिन यहाँ भाषा अलग थी, धर्म भी अलग था, और इनके कॉमननेस उतनी चीज़ नहीं थी भारत में यूरोप के जैसे। तो यहाँ पर जो था वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, कि सभी लोगों में अलग धर्म अलग जाति होते हुए भी सभी का एक शत्रु था, और सभी को एक समूह के रूप में बांध करके महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने भारत को आज़ादी दिलवाई। और यहाँ पर जो देश और राष्ट्र के प्रति प्रेम था वो नेशनलिज्म इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। ओके।